सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सुमित सर। यस। अगर आप सबने इनिशियल क्लासेस ली हैं तो हमारे लिए इजी रहेगा आज का डिस्कशन करना। तो आप बता सकते हैं आप में से कितने लोग लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे? ओके, विशेष अरोड़ा, ही वाज प्रेजेंट। ओके। राहुल, केगिडी। So I believe most of you were present in the earlier classes. So what we are going to start in this class, Payal, Santosh. Okay, fine. Take it. So are you See, talking about the offline classes? yes, I'm specifically talking about the offline classes. I believe it's the very first class online, right? इससे Yes, पहले sir. हमारी So, दो sir, ओ, हाँ जी, so, yes. sir, will you be starting from the very beginning? Because we are distant students, like we don't stay in Delhi. Okay. So, yes, sir. Will you be starting from the very beginning? The very first unit or the very first discussion, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Uh, uh, अच्छा, how many of you want the discussion from the very first class? Because there might be number of students those who have already taken my earlier two classes. क्योंकि ऐसा ना हो फिर आप लोगों को रिपीटेशन लगे। Many of you, okay, you सर want. स्टार्ट से ही करवाओ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन ही आते हैं ना, इसलिए तो आप स्टार्टिंग से ही करवाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। ऑफलाइन में सारे नहीं आते। ठीक है, ठीक है, no issue. If the house decides, if the house permits, then I can start from the very first class. Now, let me share my screen. I'll have to first open my earlier PPT then, because मैंने दूसरी PPT का सेटअप किया हुआ था। एक मिनट। Okay. I'm not sharing my screen. I believe my screen is now visible. नॉट विजिबल। Is Yes, it sir. यस visible now? विजिबल सर। ठीक है, ठीक है। So as you can see, and as we know, the paper is introduction to, or the paper is global business management. And in the very first class, we are starting with a topic which is introductory or the introduction to global business management. I tell you one thing which is very important in this paper. जब हम global business management की बात करते हैं, तो global business management is a very, very dynamic paper. Dynamic in a sense that we are living in a world, or we are living in a current time wherein we can see all around number of volatility in the market, number of conflicts, number of trade restrictions which are imposing or which are imposed by a number of different countries, right? So जब हम ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर सकते हैं दिस कुड बी अ राइट टाइम एंड नो अदर टाइम कुड हैव बीन द राइट टाइम टू स्टडी दिस पेपर। द रीजन इज बिकॉज द ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट आज के वक्त अपने आप में बहुत ही डायनेमिक एंड इट हैज बिकम वेरी इंटरेस्टिंग केस ऑफ स्टडीज, राइट? जैसे हम सिलेबस इंट्रोडक्शन से शुरू नहीं करेंगे। डायरेक्ट मैं आपको पहले ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा, एंड ओवर द टाइम यू विल गेट टू नो दैट हाउ दिस ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट हैज बिकम अ वेरी हॉट टॉपिक दीज डेज, राइट? नाउ, अच्छा, any idea, any one of you who can answer, who can enlighten us कि ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट क्या है? कोई बता सकता है कि जब हम बार बार बात कर रहे हैं कि ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, व्हाट डज इट मीन बाय ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट? Business managing the business beyond the boundaries.
managing the businesses beyond the boundaries, and the boundaries can be the national boundaries, the political boundaries. or physical National boundaries of the International country, level right? National and boundaries. international level. Yes. ठीक है. Are we only talking about businesses? Are we only talking about the transfer of goods and services from one country to another country? Yes, we are talking about transfer of goods and services from one place to another place, from one country, country number one, to country number two, for instance. Are we talking about transfer of capital from one country to another country? Yes, you heard me right. We are talking about transfer of capital when it comes to global business management. Are we talking about transfer of human capital, not only financial or monetary capital, but we also talk about transfer of human capitals from one place to another place. Imagine you want to work in USA. आपने इंडिया से स्टडी किया, आपने इंडिया से अपनी क्वालिफिकेशंस ऑब्टेन की, उसके बाद यू वांट टू गो टू यूएसए फॉर योर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस. Now, first of all, you'll have to get a visa, certain type of visa, which we normally call the certain kind of visa as H1B visa. आपको अमेरिका का वीजा लेना होगा. अब मान लीजिए अमेरिका कहता है कि आपको वीजा नहीं दिया जाएगा. क्यों नहीं दिया जाएगा? Because America doesn't want people from India, from China, from Mexico, from Bangladesh, from different other countries to enter their country, right? Because a number of different reasons. So if they say, okay, we don't want many people to come our country, in the same way, India also might say, okay, we don't want many people from other outside nations to enter my country. So what is it? These are the restrictions which are imposed by the different government by using different logicals or explanations or reasonings to limit human capital transfer from one place to another place. In the same way, you want to buy a certain product from America, and the product cost, let's say $100, $100, right? The product cost $100. $100 the cost of that product which is manufactured in America. Now it will enter India. Once the product will enter India, Indian government says, okay, we are going to do what? We are going to impose 20% duty on it, right? We are going to import a tax. It is a kind of tax. Since this is the good which is outside from outside country, so we will impose 20% tax. So let's say this is going to be now $120. You will get this good not for $400. You will get it for $120. So what is it? Is there any idea of free trade? No, this is not an idea of free trade. हम free trade की तो बात कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पर. Free trade अगर होता तो कोई restrictions नहीं होते, right? Free trade या free mobilization होता तो कोई वीजा के आपको issues नहीं होते. You can easily move from one country to another country. When we talk about global business management, we need to understand we are actually talking about an idea of free trade, and an idea of free mobility of resources from one place to another place. We are talking about when we talk about the global business management, by means we say there's a free flow of capital from one country to another country, right? इस तरह के there are number of aspects we study in global business management. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमें क्या देखना है, किस तरह से देखना है. Yes, sir. ठीक है. Now, in order to understand global business management, the very first requisite is to get the idea of globalization. अगर global business management को समझना है तो globalization समझना पड़ेगा, right? This is the very basic requirement. As you can see, over the past 3 decades, a fundamental shift has been occurring in the world economy. We are moving toward a world in which barriers to cross-border trades and investments are declining. What does it mean? That the trade barriers. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि last 35, not only 3 decades, but 30 to 35 years time period from, especially from 1990s, not only in India, but in global economy, is a watershed moment. भाई ऐसा क्या हुआ 1990 में?
1990 में the very major thing happened in 1990 is dissolution of USSR. USSR का dissolution हुआ, and the USSR was broken down in different number of countries, right? And the idea of socialism or the socialist economy went down, right? And America emerged as a union or single power in 1990. जैसे आपको पता होगा, I believe most of us we know, there are two major world ideologies or world economic system, which is capitalism and socialism. तो जब 1990 तक ये पता लगा कि यूएसएसआर के अपने आप में बहुत सारे फ्रेगमेंटेशंस हो गए हैं, बहुत सारे कंट्रीज यूएसएसआर से अलग हो गए हैं, एट द टाइम many countries they adopted the idea of capitalism. जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं, we need to understand कि कैपिटलिज्म का मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से होता है. एंड व्हाट डज इट मीन बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर आप फ्री ट्रेड को प्रमोट करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रेड को, फॉरेन कंपटीशन को आप वेलकम करते हैं कि ठीक है, बाहर की कंपनीज आ सकती हैं आपकी कंट्री में, कॉम्पिटिशन आपसे कर सकती हैं. यानी इन नटशेल आप बात करते हैं एलपीजी पॉलिसीज की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट? That is the reason 1990 is considered the watershed moment in the history of globalization, or I would say in the modern globalization, right? इस वजह से हम 1990 के बाद ये मानने लगे मेजर इकोनॉमीज, नंबर ऑफ इकोनॉमीज, एशियन इकोनॉमीज की आप बात कर लीजिए, even you talk about Eastern European economies, you will talk about many African economies, they started adopting the idea of globalization कि ठीक है, हम अपनी इकोनॉमी को खोलना शुरू करेंगे, प्राइवेट कंपटीशन के लिए खोलेंगे, फ्री ट्रेड हम इन्वॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फ्री ट्रेड करने की कोशिश करेंगे. दिस इज द मेजर रीजन the globalization has increased multifold in many ways, especially after 1990s, right? But क्या कहना, ये कहना ठीक है कि ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज ही हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, कंट्रीज आपस में फ्री ट्रेड ज्यादा से ज्यादा करना चाहती हैं, कंट्रीज आपस में ह्यूमन रिसोर्सेज की मोबिलिटी इंक्रीज करना चाहती है, फॉरेन कंपटीशन को ज्यादा से ज्यादा वेलकम कर रही है. इज इट रियली हैपनिंग? एनीवन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? No, sir. Not anymore, right? Especially after 2017. 2017 is considered a time period when the globalization and the growth of globalization was overturned, right? And now we are living in the era of slowbalization or deglobalization. 2017 के बाद से ये कहा गया कि ग्लोबलाइजेशन अब नहीं है, अब इकोनॉमीज अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड टैरिफ्स इंपोज कर रही हैं, राइट? ज्यादा से ज्यादा दे आर डिस्करेजिंग द अदर कंट्रीज टू एंटर देयर नेशंस टू इन देयर कंट्री, राइट? 2017 में what exact happened in 2017? In order to understand, 2017 was a time period when in American government there was a regime change, the government change, and at the very first time Donald Trump he became the first time president in 2017, right? Second time he became president in 2025. हमें पता होना चाहिए, ठीक है? When he becomes president at the time, he declared that he is going to impose number of tariffs, he is going to pull out from number of world treaties, and he is going to make America great again. आप कहेंगे सर अपनी कंट्री को ग्रेट बनाने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जब आप ये कहते हैं कि मुझे अपनी कंट्री को ग्रेट बनाना है और उसके लिए बाकी सारी चीजों को मुझे अवॉइड करना है, सारी चीजों को मुझे डिस्करेज करना है, that is a major problem, and the problem starts from that point of view only, which we call extremist ideologies or extremist right ideology, right wing ideologies, right? जिसमें आप अपनी कंट्री के भले के लिए, अपनी कंट्री के बेटरमेंट के लिए बाकी चीजों पर
आप बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, राइट? तो दैट इज 2017 वाज अ टाइम पीरियड जिसमें हमने बात करना शुरू किया कि अब ग्लोबलाइजेशन की ग्रोथ या तो कम हो गई है या वो अब रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है? नाउ in today's interdependent global economy, we might be using products which are procured, designed, assembled in various countries. That is true. Nowadays, even if you go to, for example, you go to England, right, and you want to buy a shirt. आप इंग्लैंड गए, आपने सोचा कि फैमिली के लिए शर्ट ले जाता हूँ, किसी अपने ब्रदर के लिए शर्ट ले जाता हूँ, आपने बोला ठीक है शर्ट ले जाते हैं, आपको शर्ट पड़ी 30 पाउंड्स की, डिस्काउंट लगाने के बाद 30 पाउंड्स की आपको शर्ट पड़ी, सॉरी पाउंड होना चाहिए था, ठीक है, पाउंड की आपको शर्ट पड़ी, आपने खुशी खुशी शर्ट को बाय किया, पर जब आपने शर्ट का टैग देखा आपको पता लगा इट्स अ मेड इन बांग्लादेश, आपने बोला यार बांग्लादेश का प्रोडक्ट मुझे इंग्लैंड में मिल रहा है। नाउ लुक एट दिस, द शर्ट was produced in Bangladesh, and from Bangladesh all across different seas this shirt was shipped to England. So what does it mean these days? Even if you buy number of, for example, even if I'm buying this laptop, is it really produced in India? No, it is not. It may not be produced in India. Even if you are using mobile phone, it may not be produced in India. It might not be produced in India, right? It can be assembled in India, but it might be produced in Taiwan. It can be produced in China, right? Even if you are using number of devices these days, these are mostly produced in Vietnam, right? There are a number of examples we even quoted in the last two classes, in the offline classes. So what does it mean? This is all about the globalization or global economy. That is the reason we call it a global economy. कि एक कंट्री में हो सकता है रॉ मटेरियल आप एक कंट्री से लें, रॉ मटेरियल एक कंट्री से लें, लेबर की हेल्प आप दूसरी कंट्री से लें, एक कंट्री से रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया और उस रॉ मटेरियल में भी 3 रॉ मटेरियल्स भी सेकेंड कंट्री से प्रोक्योर किए, थर्ड कंट्री से प्रोक्योर किए एंड फर्स्ट कंट्री से प्रोक्योर किए, राइट? यानी रॉ मटेरियल्स भी अलग अलग तरह के आपने अलग अलग कंट्रीज से प्रोक्योर किए, लेबर आपने कंट्री नंबर 4 से प्रोक्योर किया, उसके बाद उसकी असेंबलिंग, नाउ यू नीड टू असेंबल द प्रोडक्ट, राइट? असेंबलिंग, आपने उसकी असेंबलिंग, यू डिड द असेंबलिंग इन द 5th country and you sold the product, finally you sold the product in 6th country. Now what does it mean? This we call the hyper globalization, right? यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप रॉ मटेरियल कहीं से उठाते हैं, लेबर कहीं से उठाते हैं, उसके बाद उनकी शिपिंग करके असेंबलिंग कहीं पे करते हैं, उसके बाद उनकी शिपिंग करके सोल्ड कहीं करते हैं। तो दिस इज द ग्लोबलाइज्ड एरा। ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन को हार्म हो रहा है स्पेशली आफ्टर 2017, बट इट डजंट मीन कि ग्लोबलाइजेशन नहीं है। ग्लोबलाइजेशन इज अ रियलिटी, but the pace at which the globalization is increasing, that is a question. इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? जितना भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, इस पूरी प्रोसेस को we called ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में हम क्या करते हैं? we make hello, yes, someone is asking question, no, okay. तो ग्लोबलाइजेशन की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ग्लोबलाइजेशन में वी मेक वर्ल्ड इकोनॉमी एज अ ग्लोबल विलेज, राइट? वो कब पॉसिबल है? क्या ग्लोबल विलेज, क्या ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल होगा जब आप ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे? आप कहेंगे कि आपके ऊपर टैरिफ लगेगा 100%, आप कहेंगे आपके ऊपर 125% टैक्स लगेगा, आपके ऊपर 200% टैरिफ लगेगा। So by saying these things, by imposing the very humongous or very high tariff rates, you cannot make you cannot make economy as a global economy, right? तो इतने अगर आप हाई टैरिफ लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट मेक इट ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है? तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए द आइडिया ऑफ फ्री ट्रेड शुड बी देयर, कि ट्रेड फ्री हो। फ्री का मतलब ऐसा नहीं है कि कंसिडरेशन नहीं हो, फ्री ट्रेड का मतलब है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है? नाउ so this is one of the explanation I did
in the last in a very first class, wherein we talked about the World War One, when the World War One happened in 1914. The idea was not to discuss history only, but the idea was to understand the modern globalization, right? So World War One happened in 1914. Thereafter, there was a time between the First World War and the Second World War, from 1919 to 1939. We called it the interwar period. Interwars period is a time period which we are witnessing after 1917, 2026. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वॉर हो रहा है, बट दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन, द काइंड ऑफ characteristics the interwar period has shown us. We can trace those characteristics in the recent time period, sorry, 2017, right? Interwar period में क्या हुआ? Interwar period में अलग अलग countries में कुछ charismatic leaders, they took power, as you can see here. Benito Mussolini, Hitler, and Joseph Stalin in different countries, right? Benito Mussolini from Italy, Hitler was from Germany, and Joseph Stalin is from USSR, जो रशिया, जिसको आज हम रशिया भी कहते हैं, ठीक है? तो interwar period was the time. Number of these charismatic leaders, they born, they emerged, they took control over their economy, and the world economy had become very protectionist economy. प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं ना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करते हैं, तो प्रोटेक्शनिज्म, तो वी कॉल इट प्रोटेक्शनिज्म इकोनॉमी. So protectionism happened in this time period. Thereafter, after 1913, after the Second World War, we realized that war is not the solution. War can never ever be solution. आप पिछले 30 साल के टाइम पीरियड में 2 बड़े वॉर कर चुके हैं, जिसमें नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ लाइव्स, civilian and the military lives, they were at stake, and they suffered those casualties, especially the USSR. आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसएसआर के सबसे ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी. I don't remember the data as of now, but in World War II alone, more than 6 CR, 60 million people, they lost their lives. Imagine the level of the World War II. So countries, what they did, countries they decide that war should not be the solution, and therefore they should accept the fact that the country should now trade, country should not cooperate. That is the only reason after 1945, number of institutions they came into existence. जिनका आप आज नाम सुनते हैं ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक. These are the institutions, or one of which I forget to mention, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रेडिसेसर वाज गैट. इसका पहले नाम गैट हुआ करता था. 1990 में द नेम वाज चेंज्ड टू, 1995 में इट वाज चेंज्ड टू WTO. So when GATT was started, Hello, sir. Sir, we are not able to hear you, I think. hello, Yes, sir, now it's clear, sir, because your voice broke in between. क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर, थोड़ी साउंड नेटवर्क नहीं आ रही प्रॉब्लम थी है? इधर आप नहीं, साउंड आई नहीं आ थिंक रहा था सर नेटवर्क आपका. प्रॉब्लम हो रही होगी शायद. यस, अभी एम आई सही है सर, ऑडिबल? अभी आवाज आ रही है. यस यस. Yes, sir. सही है. यस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you are. Yes, sir. Sir, I don't know what was the issue.
कोई प्रॉब्लम है प्लीज लेट मी नो। सर आपकी आवाज आवाज थोड़ी नहीं देर आ रही है पहले मुझे आप लोगों की। बट वी कैन हियर यू सर। So I assume everything is fine then. Shall I continue? यस यस सर। Hello. यस I सर। don't know what is the issue. Yes. सर वी मुझे कैन समझ हियर नहीं यू आ रहा। राइट ना। अभी सही है आपको सर, अभी आवाज आ रही है। हाँ अब आ रही है मुझे आप लोगों की हाँ आवाज। हाँ सर, आपकी आवाज सर पीपीटी थोड़ी देर पहले पीपीटी ब्रेक शो हो नहीं गई हो रही। थी। अच्छा आपकी आवाज सर पीपीटी भी थोड़ी देर शो पहले नहीं हो रही ब्रेक है हो गई आपको। थी। जी जी, No, थोड़ी sir. देर पहले आपकी Yes, आवाज sir. ब्रेक भी हो गई थी Check. क्या? It's not visible. I don't know what was the issue but my network is फिर आवाज चला गया आपका सर। रोलेक्स भैया सर को फोन करके बोल दो कि सर का नेटवर्क थोड़ा इशू होगा, आवाज आ नहीं रही है उनकी। okay. I hope मैं अब आपको ऑडिबल हूँ। यस Yes, सर। sir. अभी Okay fine. ठीक है। I connected my mobile network with to my laptop. I believe अब आपको क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा लास्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया था इसमें? Sir, So सर that I please can आपकी share continue. के. Sorry. GATT सर। ओके गैट के बारे में बात कर रहे थे। तो गैट इज नथिंग बट द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है, दैट वाज क्रिएटेड इन 1947। अभी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं दे वर इमर्ज फ्रॉम 1945 सर टू 1950 ओनली, पीपीटी राइट? प्रेजेंट कर दैट वाज लीजिए द सर। टाइम पीरियड। Sir, screen show नहीं हो पीपीटी रही नहीं है. दे। अच्छा ओके। ओ आई फॉरगॉट टू शेयर पीपीटी देन। एक मिनट बस, वो इतनी बार ऑन ऑफ हो रहा था इसलिए। ठीक है। Yes, sir. हम्म। So if we see the creation of these institutes, so we can easily trace the evidence of the existence of these institutes, that they were created from 1945 to 1948, right? जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको वॉर नहीं करना है, बहुत वॉर कर चुके हैं 30 इयर्स में, 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके थे। कंट्रीज ने रियलाइज किया कि अब हमें ट्रेड करना होगा, कॉर्पोरेशन करना होगा, एंड that is the birth or the 1940, after 1945 we call this time period the birth of
birth of modern day globalization. Modern day globalization. Right. And thereafter, the most important event happened in 1990. जो मैंने आपको बताया था, in 1990 many Soviet USSR countries, they were dissolved and they were independent from USSR, and we call that time period 1990 is the birth of neo globalization. यानी modern day globalization के बाद neo globalization was started. So this is the time period we can understand how globalization has increased over the years because of the different major events, right? Now, for businesses, this globalization process has produced many opportunities. Firms can expand their revenues by selling around the world. It is very correct when we talk about a company. For example, I'm giving the same example which I mentioned in my very first class. For example, I want to make a duster, right? जैसे आप duster देखते हैं classroom में, तो I want to make this duster, and this duster has some raw material inbuilt in this duster. The very first raw material can be foam. डस्टर का सेकंड मटेरियल हो सकता है प्लास्टिक, द प्लास्टिक डस्टर है, राइट. द थर्ड मटेरियल ऑफ दिस डस्टर कैन बी फॉर एग्जांपल मैग्नेट, और नहीं मैग्नेट नहीं, थर्ड वन कैन बी यस एडिसिव, जिससे इसको हम चिपकाएंगे. ठीक है. दीज आर द रॉ मटेरियल I require in order to make this duster. I want to make this duster. I am Mr. X. I want to sell these duster not only in my country, not only in India. I want to make these duster available across the globe. I want to make the specialized, the best duster available in any country. I want to make such duster, right? तो उसके लिए मुझे क्या करना है? मैंने देखा मैं इतना सब कुछ पैसा लगाऊंगा, इतना सब बिजनेस करूंगा, सिर्फ इंडियन मार्केट से, सिर्फ इंडिया मार्केट से मुझे बेनिफिट नहीं मिलने वाला. आई हैव टू गो अब्रोड, आई हैव टू गो ग्लोबल, राइट? इन ऑर्डर टू मेक द एफिशिएंट डस्टर, मैंने देखा कि जो फॉर्म है ना डस्टर का, वो मेरी कंट्री में अच्छा नहीं मिलता है. देयर इज अ कंट्री कॉल्ड श्रीलंका, फॉर इंस्टेंस. श्रीलंका में डस्टर का जो फॉर्म है सबसे बेस्ट मिलता है. मेरी कंट्री में भी मिलता है, बट मेरी कंट्री में क्वालिटी इतना सुपीरियर नहीं है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू श्रीलंका, आई मीन आई विल प्रोक्योर दोस फॉर्म्स इन ऑर्डर टू मेक फाइनल प्रोडक्ट डस्टर. आई विल गो टू श्रीलंका. फिर मैंने देखा अच्छा व्हाट अबाउट प्लास्टिक. आई गॉट टू नो प्लास्टिक इज नॉट अवेलेबल efficiently in India, but it is available in Ghana, for instance. I went to Ghana. I procure plastic, the best efficient quality product I procure from Ghana. What about glue, adhesive? I could see India is the one of the country which can provide efficient glue, right? तो मुझे पता लगा कि भाई ये सारे मुझे रॉ मटेरियल्स इंडिया से मिल गए. What about labor? क्योंकि labor will be the one who will make this final product, right? By using different raw materials. I got to know कि लेबर मुझे इंडिया में सस्ता मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लेबर की. सस्ता लेबर इंडिया में अवेलेबल है, एज वी नो. बहुत सारे कंट्रीज हैं, आसियान कंट्रीज हैं, आसियान कंट्रीज हैं. इन आसियान कंट्रीज में, आसियान कंट्रीज सच एज वियतनाम, यहाँ मुझे सस्ता मिल जाएगा. कंबोडिया, यहाँ मुझे सस्ता मिल जाएगा. देयर कैन बी नंबर ऑफ कंट्रीज, राइट? देयर आर टोटल इन 10 कंट्रीज इन आसियान. ठीक. बट मुझे लगता है इंडिया में मुझे लेबर चीप अवेलेबल है. I made this duster. I made the final product. Since I am procuring each and everything at a very efficient way, in a very efficient way, so my product will also be very efficient. ठीक है. I want to sell this duster not only in India but to world economy or to world global economy. मैं वो तभी कर सकता हूँ जब कंट्रीज के रेस्ट्रिक्शंस कम होंगे. अगर सब कंट्री मना कर रही हैं कि भाई वी डोंट वांट फॉरेन डस्टर, हमें इंडिया का डस्टर नहीं चाहिए, मेरी कंट्री में जो डस्टर बनता है हमें वही यूज करना है. इट मींस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ नो ग्लोबलाइजेशन, और बिकॉज ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम, मैं अपनी कंट्री में प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा हूँ.
सॉरी, मैं इस डस्टर को सेल ही नहीं कर पा रहा हूँ. This is the major reason the globalization helps companies to expand their business across the globe. We can see number of Indian companies, Reliance Industries, you see Airtel, you see uh, TCL, you see number of different L&T, Larsen and Toubro. These are the number of major Indian giants. They have their presence across the globe. वो कब पॉसिबल है? जब ग्लोबलाइजेशन होगा, जब कंट्रीज को अलाउ किया जाएगा कि हाँ आप हमारे यहाँ पर आ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं. ठीक है. For instance, law legal forms. So there is a case study which I'll just explain in next slide. जब हम लॉ फॉर्म्स की बात करते हैं, इंडिया आपको पता होगा हम सर्विस सेक्टर के आउटसोर्सिंग में बहुत एफिशिएंट है. वेस्टर्न कंट्रीज हमारे लिए वेस्टर्न है वो कंट्रीज जिसमें मान लीजिए यूएस आता है, यूके भी आता है. ठीक है. देर आर इटाली आता है, जर्मनी आता है, देर नंबर ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज. ठीक है. इन कंट्रीज में प्रॉब्लम क्या है? इन कंट्रीज का मेजर प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो लेबर है ना, लेबर की कमी है, लेबर शॉर्टेज है. अब ये लेबर शॉर्टेज होगी अगर, एक बात बताओ, अच्छा हैव यू हर्ड एनी स्टोरी if someone of your relative they stay in London or in America, in any Western European countries, Sweden for instance, Germany, they will definitely tell you one story. The labor costs are very, very high. There was one instance I'm going to tell you. One of my relatives, she lives in London. So she told me one instance कि उनको they wanted to buy some product and the product required some installations, right? जैसे इंडिया में क्या होता है, आपको इंस्टॉलेशन कराना होता है प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ. अब इंस्टॉलेशन आपको कराना है प्रोडक्ट का, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इंडिया में किसी को भी फोन करेंगे, आपके आसपास के जो आपकी सोसाइटी में जो भैया आते हैं, प्लम्बर भैया आते हैं, कारपेंटर आते हैं, अलग अलग सर्विसेज के लिए, यू कॉल देम एंड ही कम्स एंड वी पे सर्टेन अमाउंट, राइट? In many cases, what they observe, even in the installation fees, if they are not coming with the product, if they are not free of cost with the product, their installation costs are higher than the product actual cost. अब एक बात बताओ, प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज्यादा इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, राइट? इंस्टॉलेशन कॉस्ट इतनी ज्यादा है तो आप ऑब्वियसली प्रोडक्ट बाय करने में डिस्करेज होंगे. प्रोडक्ट आपने बाय कर लिया और प्रोडक्ट बाय करने के बाद you will be in a position that you will not be able to afford such services, labor services. तो वहां पे क्या होता है, ज्यादातर लोग अपने पास टूल्स रखते हैं. दे आर लाइक कि भाई हम प्लम्बिंग का काम भी खुद कर रहे हैं, मेजर जितना काम वो कर पाते हैं, हम कारपेंटर रिलेटेड काम भी खुद करते हैं. वी हैव आवर टूल्स एंड वी यूज दोज टूल्स. क्या कारण है? द रीजन इज देयर लेबर चार्जेस आर वे हायर, राइट? That is the reason if the person they are earning very handsome income, they are taking very handsome salaries, but still they are not in a position to afford single time maid. आपने सुना भी होगा, ये काफी मतलब इट्स वेरी प्रोमिनेंट. इंडिया के जो लोग वहां पे अच्छे इनकम अर्न कर रहे हैं बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते मेड को. द रीजन इज देयर चार्जेस आर वेरी हाई, राइट? दिस इज वन ऑफ द रीजन. इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर लेबर की एबेंडेंसी है, नॉट ओनली इन इंडिया, फिलीपींस फॉर इंस्टेंस, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडियन लेबर से भी ज्यादा सस्ता बांग्लादेश लेबर है, राइट? तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों को आउटसोर्स कर सकती हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज. वन ऑफ सच सर्विस इज अ लॉ फॉर्म रिलेटेड सर्विसेज. मान लीजिए अमेरिका में कोई एक यूएस बेस्ड एक अमेरिकन लॉ फॉर्म है. अब लॉ फॉर्म क्या करती है? प्रोसिक्यूशन करती है, लिटिगेशन रिलेटेड सर्विसेज देती है, राइट? अब अमेरिकन लॉयर अमेरिकन लॉ ऑफ कोर्ट में जाकर केस को डिफेंड करेगा, प्रोसिक्यूट करेगा. इंडियन नहीं जा सकता, राइट? बट देयर कैन बी नंबर ऑफ सर्टेन सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल प्रूफ रीडिंग्स, डॉक्यूमेंट का प्रूफ रीडिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डॉक्यूमेंट की प्रूफ रीडिंग्स होना जरूरी है. इंश्योरेंस फॉर इंस्टेंस, इंश्योरेंस के जो आपके डॉक्यूमेंट है उनका प्रूफ रीडिंग होना जरूरी है. American company they realize the proofreading services if they hire some American
They're sitting in California and they are charging, for instance, $200, $200 a particular lawyer, average lawyer in America per hour. Imagine $200 per hour. They feel this can be outsourced. This can be outsourced to India. This can be outsourced to Philippines. क्यों? क्योंकि इंडिया में लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज की आउटसोर्सिंग is 6 to 7 times cheaper, 6 to 7 times cheaper than that of in USA, around $30-40 per hour. जो कंपनीज को पे करते हैं, आपको पता है कंपनीज फिर अपने एम्प्लॉयज को कितना पे करती हैं, मच लेसर देन दिस. बट if you look at these differences, you will see that is the reason we have outsourcing in Bangalore. We will see in Gurgaon, right, in Noida, outsourcing है. हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में आपने टेस्ट कराया, किसी अमेरिकन ने टेस्ट कराया कैलिफोर्निया में, उसकी रिपोर्ट कहाँ बनेगी? उसकी रिपोर्ट को बनाएगा एक रेडियोलॉजिस्ट, राइट? रिपोर्ट बनाने का काम बैंगलोर बेस्ड कंपनी को दिया जाएगा. क्या टेस्ट कैलिफोर्निया में हुआ, रिपोर्ट की जो रिपोर्ट राइटिंग है दैट विल हैपन इन बैंगलोर. This is we call the hospital services are also outsourced, right? So this is something that India, we are more efficient in such services, right? We are more competent, we are more efficient, and that at the same time we are charging much lesser than American companies, Western European countries, companies, right? Financial crisis in developed economies can trigger a global economy recession. That is true. जब हम फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं, कोई भी कंट्री जिसमें कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, जैसे फॉर इंस्टेंस 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, राइट, वेरी फेमस और वेरी इनफेमस आई वुड से 1928 का ग्लोबल रिसेशन, मदर ऑफ ऑल रिसेशन वी कॉल इट, ग्लोबल डिप्रेशन, इसको ग्लोबल डिप्रेशन भी बोला जाता है, मदर ऑफ ऑल रिसेशंस. ठीक है. अच्छा, एनी आइडिया, एनीवन, कोई बता सकता है ये ग्लोबल रिसेशन, डिप्रेशंस क्या होते हैं इकोनॉमी में? आई बिलीव आपको आवाज आ रही होगी मेरे. हाँ सर, आ सकती है, आ रही है सर. ओके, आ रही है, ठीक है. तो सर एनी इसमें आइडिया? हाँ. ये ग्लोबल रिसेशन सर वो होता है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना वर्ल्ड वाइड काफी स्लो हो जाती है. जैसे आपने ग्रेट ग्लोबल डिप्रेशन की बात करा, ग्लोबल मदर ऑफ ऑल द रिसेशन की. और बिजनेस Right. जो है उसमें लेस मतलब उसका मार्जिन बच जाता है, ले ऑफ ज्यादा हो जाता है, वेरी गुड. डिमांड भी कम कम हो जाती है सर. यही सब है. बिल्कुल. देखो, बहुत सिंपल सी चीज है. जब हम किसी स्लो डाउन की बात करते हैं, देखो कुछ स्टेजेस होती हैं. पहले इकोनॉमी स्लो होना शुरू करती है. इकोनॉमी स्लो होते होते अगर बहुत ज्यादा एक लेवल से ज्यादा स्लो होने लगी, देन वी कॉल इट रिसेशन. और रिसेशन का एक्सट्रीम वर्जन वी कॉल इट डिप्रेशन, राइट? सो व्हाट हैपेंस इन दीज स्टेजेस, अगर किसी इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज की कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से एप्पल, फॉर इंस्टेंस लेट्स से गूगल, ठीक है, लेट्स से NVIDIA. they have the market capitalization more than Indian economy, imagine, right? So these countries, their market capitalization in worth of trillions of dollars. ठीक है. मान लेते हैं कुछ ऐसा टेक्नो रिलेटेड मिसहैप हुआ इकोनॉमीज में, टेक्नो रिलेटेड मिसहैप हैपेंड. बिकॉज ऑफ सच टेक्नो रिलेटेड मिसहैप हैपेंड in these companies, ये कंपनीज डूब गए, बंद हो गए. क्या लगता है इकोनॉमीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा. कितने लोग, इमेजिन कितने लोगों का पैसा फंसा होगा इस इकोनॉमी में, जिन लोगों ने द पीपल दोज हु हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड हेवीली इन दीज कंपनीज. शेयर प्राइस नीचे चले जाएंगे, and when the share price will go down, people will lose their money,
Definitely, right? At the same time, number of employees, they will lose their job. Those who are working in these companies, they will lose their job. Now, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वो डूब गया, आपकी जॉब चले गए। अब उसके बाद क्या होगा? क्या आप डिमांड करोगे मार्केट में जाके? जो आप पहले डिमांड करते थे, कम कर दोगे ना? बिल्कुल जीरो तो नहीं होगी, बट डिमांड बिल्कुल नीचे चली जाएगी। And when the demand goes down, right? So we call that economy has taken a hit and the economy has slowed down. और अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे चलता रहा, अब देखो क्या होगा? आपने डिमांड कम की, नई फैक्ट्रीज जो प्रोडक्ट बनाती थी, क्योंकि आप नहीं खा रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो कंपनी प्रोडक्ट बनाना बंद कर देगी। जब वो कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी तो क्या होगा? रिपल इफेक्ट होगा, वहां के एम्प्लॉयज छूटेंगे, एम्प्लॉयज की जॉब चली जाएगी। अब ज्यादा एम्प्लॉयज की और जॉब जाएगी, जो बाकी कंपनीज है वो बंद होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि प्रोडक्ट बाय ही नहीं कर रहा है। तो दिस वी कॉल द विशियस सर्कल। ये ऐसा सर्कल है जो अपने आप में रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है, एक के बाद एक के बाद एक इम्पैक्ट उसका बड़ा होता जाता है, राइट? सो दिस इज समथिंग वी कॉल डिफरेंट रिसेशंस। ठीक है, हिस्ट्री उठा के अगर आप देखें, यू विल गेट टू नो जितने भी अभी तक वर्ल्ड इकोनॉमीज में डिप्रेशन रिसेशंस आए हैं, दैट इज ओनली कॉन्ट्रीब्यूटेड by Western economies, especially US. 2008, what happened in 2008? In 1928, what happened in 1928? That was all started from US stock market. ठीक है? अच्छा, आप सबको समझ आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रही हैं चीजें? Yes, sir. Very interesting. Yes, sir. ओके, फाइन। So, अच्छा, एक चीज मैं आपसे yes, कहना sir. चाहूंगा। हाँ, बस one thing I want to say. Since we have no face-to-face interaction here, and we know because of the technological glitch and everything, sometimes it happens. I'm saying technological or internet problem happen in your end, and it can happen in my end also. तो बहुत obstacles होते हैं online classes के। अगर आपको कभी भी लगे, किसी भी पॉइंट पे ये लगे कि आपको कोई टर्म समझ नहीं आई है, या आपका इंटरनेट चला गया था, आप लॉग आउट हो गए थे, प्लीज स्टॉप मी इन बिटवीन एंड प्लीज आस्क। क्योंकि आप अगर कुछ सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर, तो मैं इस चीज का आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ दैट आई विल टीच यू इन अ वे यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट। बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर यू विल नॉट ओनली पास दिस पेपर। पेपर पास करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता सिर्फ, है ना? सिंस वी आर डूइंग एमबीए, so we must know we have already done our UG from good universities, and if you get the chance to complete your MBA from Delhi University, तो आप सिर्फ इतना मत सोचिए कि आपको सिर्फ एमबीए पास करना है, आप ये सोचिए कि आपको एक नए लर्निंग से पास करना है। हो सकता है लाइफ में हमारे यूज ना हो, बट यू विल हैव अ कंप्लीट व्यू ऑफ द होल सिस्टम, हाउ थिंग्स वर्क, राइट? तो एग्जाम पास करना एक अलग चीज है, बट उस चीजों को समझना, उन चीजों को इनकलकेट करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड विच इज ब्रॉडर, मच ब्रॉडर देन ओनली पासिंग योर एग्जाम्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट, आप लोग बिल्कुल कभी भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कोई आपका डाउट हो, डाउट रेज कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के अपने डिसएडवांटेजेस हैं, बट एडवांटेजेस ये हैं कि हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्लास ले सकते हैं, राइट? अब मैं जिस तरह से बैठा हूँ, जिस तरह से मैंने बाल बना रखे हैं, बिकॉज आई केम वेरी लेट, वी हैड वन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन नॉर्थ कैंपस टुडे फ्रॉम आवर कॉलेज, so I was there all day from morning to evening, late evening. So it is something like, okay, I'm much comfortable in my skin because I need not open my camera, right? तो ये हमारे पास एक कन्वीनियंस होती है, ठीक है? Anyways, so we are discussing this case study. This case study will demonstrate the impact and the uses of law services firm, and how many US clients, US based clients and the US law firms, they get benefited because of such outsourcing of law related services to India and Philippines. मैं बार बार फिलीपींस का नाम इसलिए ले रहा हूँ, there's a purpose. I'm quoting again and again Philippines. Philippines is one of the reason is क्योंकि Philippines का law outsourcing is very efficient. It is at par, right? अगर इंडिया से कम नहीं है तो ज्यादा भी नहीं है, तो Philippines and India, they are considered very excellent destination for law related outsourcing services. ठीक है? Now we are starting this case. Sacha Baron Cohen, the irreverent British comedian whose fictional characters have included Borat, Ali G, and Bruno, attracted many lawsuits against him.
So I don't know how many of you know him. He is a very, I find him very intelligent, very smart actor and comedian. He has done number of movies, right? One of the very famous movie, which I find it very interesting movie, and I appreciate that movie. Many of us, many people, they appreciate that movie called name Dictator. I don't know how many of you have seen that movie. The character guy Aladdin is the same person, Sacha Baron Cohen. हम उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पर. So what happened in his case? In 2009, what happened? There was a case filed by women against him, and the women, she claimed that Cohen defamed her during a sketch in the Da Ali G show. That was one of the movie or one of the production, and she claimed कि सेशा बेरोन ने उसको उस मूवी में उसके कैरेक्टर को डिफेम किया था इन 2009. व्हाट हैपेंड, मैं एक चीज आपको बता दूं, खासकर यूएस का जो लीगल जस्टिस डिपार्टमेंट है या जस्टिस है, हमारे यहाँ के जस्टिस नेचर से काफी डिफरेंट है. तो व्हाट हैपेंस नॉर्मली, स्पेशली इन द डिफेम केसेस, जब भी कोई किसी को डिफेम करता है एंड द केस गोज टू द लॉ ऑफ कोर्ट, ज्यादातर आर्टिस्ट ये प्रेफर करते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया जाए. What is the reason behind out of court settlement? Because if you lose that case against, in that case the penalty would be very very high, humongous penalty आपके ऊपर लगती है. और जो cases होते हैं defamation case अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में बहुत कंपेरेटिवली, इंडिया के कंपैरिजन में बहुत जल्दी उन केसेस को मतलब उनके वर्डिक्ट्स आ जाते हैं, यानी जल्दी डिस्पोज कर दिए जाते हैं. So what many celebrities, many people, those who are charged against the defamation cases, they try out of court settlement in more often comparing to fighting the case in the law of court. What he did is very interesting here. In this lawsuit, major work or major preparatory work was not done by the lawyers in the Los Angeles, but that work was outsourced to one of the legal consultancy services in India that was situated in Mysore, India. So what he did not do the out of court settlement. He went for the case fighting, and he ultimately won that case. The outcome was in his favor. And that all could possible only because of the legal consultancy services provided by Indian company. Imagine करो आपको legal consultancy services लॉस एंजलिस की एक फॉर्म से लेना है, जिसमें मैंने आपको बताया था, look at their charges. They charge from $200 to $500 per hour. Imagine 1 घंटे के आप लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए आप इतना चार्ज करते हैं. On the other hand, Indians or the same counterpart, they charge from $30 to $150 per hour for same work. So obviously, अगर ये कुछ काम, सारा काम तो नहीं हो सकता, but most of the preparatory work, if such work can be outsourced to Philippines or Indian based firms, तो इस तरह के केसेस में जो कॉस्ट एफिशिएंसी है, जो कॉस्ट होगी केस को लड़ने की, वो ऑब्वियसली विल कम डाउन. जब कॉस्ट कम आएगी तो उस केस में आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में आपको क्या करना पड़ता है, आपको पैसा देना पड़ता है ना सामने वाली पार्टी को. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द केस, and I have inserted this entire or article here. So those who would be interesting, I have already provided this PPT. So those who want to go in depth, so they can visit this article, right? Now, come to types of globalization. अब सवाल उठता है कि ग्लोबलाइजेशन हमने समझ लिया, सर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है फ्री इकोनॉमी होना, आइडो फ्री इकोनॉमी को प्रमोट करना, फ्री रेस्ट्रिक्शंस, आई मीन देयर शुड बी नो रेस्ट्रिक्शन, लोग आसानी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कर सके. वैसे बहुत रियलिज्म की बात की जा रही है, बहुत आइडियलिस्ट, नॉट रियलिज्म, बहुत आइडियलिस्ट थॉट है ये कि कंट्री देयर शुड बी अ फ्री मोबिलिटी ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. ऐसा है? बिल्कुल नहीं है. क्या कोई प्रोडक्ट इजिली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता. उसमें आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं, आपको वीजा लेना पड़ेगा. कोई ऐसी कंट्री नहीं जिसमें आपको वीजा नहीं लेना.
you'll require visa. In case, for instance, I'm just telling you about, for example, you want to go to US. आप अपनी फैमिली के साथ यूएस जाना चाहते हैं, तो मैं आपको मतलब बहुत रिसेंट केस बता रहा हूँ। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, राइट? आपकी फैमिली यूएस में है, फॉर एग्जांपल एटलांटा में वन ऑफ दे 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 आर, आपका एक फैमिली भी है वहाँ पर। उसके बाद आपको टूरिस्ट वीजा मिलने में समटाइम इट टेक 7-8 मंथ्स, इमेजिन करो। तो आपको 7-8 मंथ्स पहले से प्लानिंग करना पड़ता है इफ यू वांट टू गो टू विजिट। तो दिस इज समथिंग वी से कि रियलिटी में तो हम बार बार बात कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि देयर शुड बी अ फ्री ट्रेड, देयर शुड बी अ फ्री मोबिलिटी ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, देयर शुड बी अ फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। बट इज इट रियली हैपनिंग? नो, इट्स नॉट हैपनिंग। हो रहा है बट रिस्ट्रिक्शंस के साथ हो रहा है, ठीक है? तो ये हमें आइडिया रखना है जब भी हम ये पेपर को स्टडी करेंगे। इन ईच एंड एवरी क्लास द बेस विल रिमेन सेम, कि हम फ्री ट्रेड की बात करते हैं, फ्री आइडिया ऑफ चीजों की बात करते हैं, बट रियलिटी में वो इतना फ्रीली होता नहीं है जितना अपीयर हम करते हैं, जितना हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स एंड द सेकंड वन इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शंस. दोनों को समझेंगे एंड दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. बात एक ही है, बट एक अलग अलग तरह से हम उसको देखने की कोशिश करेंगे. व्हाट डज इट मीन बाय मार्केट्स एंड प्रोडक्शंस, वन बाय वन. फर्स्ट केस, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. क्या मतलब इस ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का? इफ यू रिकॉल द लास्ट एग्जांपल व्हिच आई quoted earlier, what I told you, I wanted to make the best tester available in the market, which any country can buy. It would be so efficient, it would be so efficient in quality, it would be so efficient in terms of prices that every country will buy my duster. And in order to do that, मैंने क्या किया था? आपको याद करो, मैंने रॉ मटेरियल बाय किया था बांग्लादेश से. I bought raw material from Sri Lanka. I bought some raw material from Ghana, right? I bought some raw material from India. उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देते हैं. लेबर के लिए आई वेंट वियतनाम, कि अब क्या करो, इस सारे रॉ मटेरियल को पकड़ो, इसको असेंबल करो. सो व्हाट इज इट? व्हाट आई डिड, तो पूरा प्रोडक्शन साइड कर रहे हैं, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट. व्हाट आई डिड, मैंने हर चीज को अलग अलग जगह से प्रोक्योर किया है. एंड आई माइट सोल्ड दिस प्रोडक्ट समवेयर एल्स, मैं कहीं और बेच रहा हूं इस प्रोडक्ट को. व्हाट आई डिड, I globalize the entire production unit. This we call the globalization of production. ठीक है? Now, refers to the sourcing of goods and services from locations around the globe. आप अपने प्रोडक्ट के लिए बेस्ट से बेस्ट बाय करना चाहते हैं, कोई कहीं से उठाया, कुछ कहीं से उठाया, कुछ कहीं से उठाया, and you made the final product, और वो भी कहीं और बनाया, बेचा कहीं और बेचा. This is we call the globalization of production. So there is a case which we'll see. Why globalization of production happens? भाई क्या कारण है? Why I'm buying foam from Sri Lanka? Why I'm buying plastic from Ghana? Why I'm buying glue from Bangladesh? And why I want these these raw material to be assembled in Vietnam? क्या कारण है मैं ऐसा कर रहा हूँ? आप बोलेंगे सर क्योंकि सर, ये जिन कंट्रीज से, हाँ जी बोले. क्योंकि आपको प्रोडक्ट कॉस्ट सेव सर करना है. कॉस्ट का बिल्कुल, वेरी गुड. कोस्ट मुझे सेव करना है, मुझे एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है कि जो एक बार यूज, कोई फैकल्टी यूज कर ले कि भाई ये डस्टर इतना अच्छी क्वालिटी का है, ये टूटता ही नहीं है, प्लास्टिक इतना अच्छा है, ग्लू हटता ही नहीं है, ग्लू क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी गुड, राइट? वो जो फॉर्म लगाया है वो उसको एब्जॉर्ब अच्छा करता है, वो डस्ट को एब्जॉर्ब अच्छा करता है. दैट इज माय ऑब्जेक्टिव. आई वांट टू मेक माय प्रोडक्ट वेरी एफिशिएंट. दिस इज ओनली लॉजिक कि कॉस्ट मुझे कम करना है, कॉस्ट साथ में मुझे प्रोडक्ट को एफिशिएंट बनाना है. आई वांट टू मेक माय प्रोडक्ट एफिशिएंट एज वेल. सो दिस इज अबाउट ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शंस. सो देयर इज अ केस.
This is a case, but which I did. I simplified this case and I curtailed down this case to get the good idea about it. This is a case about Boeing 777. So Boeing had come up with one of the commercial jetliner back in 2000, if I'm not mistaken, 2010-12 time period was the time when they came with this Boeing 777. What was interesting in their product? The interesting was the product was made, क्योंकि आप इमेजिन करो एक प्लेन आपको बनाना है. बोइंग इज यूएस बेस्ड कंपनी, ये ध्यान रखना है. यूएस से बेस्ड कंपनी बोइंग प्लेन्स बनाती है, जिन प्लेन्स में हम बैठ कर जाते हैं. फ्रॉम दिल्ली टू गोवा चले गए, दिल्ली टू मुंबई चले गए, तो या तो प्लेन आपको एयर बस का दिखता होगा या आपको बोइंग का दिखता होगा, है ना. इसका तीसरा ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है हमारी कंट्री में अभी. एयरबस या बोइंग का आपको प्लेन दिखता है. तो जब आप कॉमर्शियल जेटलाइनर की बात करते हैं, तो व्हाट वाज इंटरेस्टिंग इन देयर केस, आप प्लेन इमेजिन करो कि एक प्लेन है. आई वुड ट्राई टू मेक प्लेन. दिस मोर लुक्स लाइक व्हेल, बट ठीक है, कोई नहीं, काम चला लेंगे हम. प्लेन ही लग रहा है, चलो. तो ये प्लेन है, ये एयरलाइन है कोई, देयर इज सर्टेन एयरलाइन. दिस इज द प्लेन. Imagine this plane. There are the number of components company will use in order to assemble a product. But more interesting, how they procure those different raw materials. 8 Japanese supply makers, they were supplying the fossils, doors and wings. Japanese companies से door आ रहे हैं, wings आ रहे हैं, fossils आ रहे हैं. A supplier in Singapore makes a door for the nose landing gear. 3 suppliers in Italy manufacture wing flaps, and their engine was made by Rolls-Royce. So if you look at it, एक प्लेन को बनाने के लिए more than 15 countries were involved in Boeing 777 production. अलग अलग components अलग अलग countries से आए, and final assembling was happened in America. Imagine the level of outsourcing. आपने अपने प्रोडक्ट का ज्यादातर अमेरिकन प्रोडक्ट है, बट उसमें हो सकता है 65, आई वुड से 65 ऑफ द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट वाज आउटसोर्स. उसको आउटसोर्स किया गया था. ओनली 35% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट वर इन हाउस इन मी, which means in America, US. So this example demonstrate the company like Boeing, in order to make the best quality commercial jetliner, in order to give tough competition to Airbus, the company procure best available product raw material from different companies. And 65%, imagine करो आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 65 रुपए का प्रोडक्ट आप खुद नहीं बनाते हैं. 65 रुपए का प्रोडक्ट आप अलग अलग 15 कंट्रीज से बाय करते हैं. सिर्फ 35% वैल्यू, यानी 35 रुपए की वैल्यू का आप अपने घर में अरेंज करते हैं. इमेजिन द लेवल ऑफ आउटसोर्सिंग. ऐसा नहीं कि इस आउटसोर्सिंग के कोई नुकसान नहीं होंगे, नुकसान भी है. दिस वी कॉल अल्ट्रा आउटसोर्सिंग और हाइपर आउटसोर्सिंग. आपने आउटसोर्सिंग तो किया, बट कुछ ज्यादा ही कर दिया, है ना, कुछ ज्यादा ही कर दिया. वी कॉल इट अल्ट्रा आउटसोर्सिंग. Ultra outsourcing, why I'm saying ultra outsourcing can backfire. In Boeing 777 case, I tell you, हुआ क्या, Boeing 777 में क्योंकि कंपनी ने फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा बड़े लेवल पे आउटसोर्स किया था कि अपने प्रोडक्ट का 65% द वैल्यू दे आउटसोर्स फ्रॉम 15 डिफरेंट कंट्रीज. हुआ क्या, आपको सब कुछ अरेंज करना है, अलग अलग कंट्रीज से अरेंज करना है. देयर विल बी अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डेफिनेटली देयर विल बी अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. देयर विल बी अ कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम. आपको हर एक सप्लायर से कोऑर्डिनेट करने के लिए, जितने ज्यादा सप्लायर, जितने ज्यादा कंट्रीज, there can be language barriers, culture barrier also, especially if you are working with Japanese companies. Language and culture barriers, they are supreme, बहुत important, बहुत difficult है, right? Japanese culture and American culture, they are very extreme, बहुत अलग अलग है, बिल्कुल ही अलग अलग cultures हैं. Work culture are different, their languages are different, their work ethics are different, how they perceive their company or employment is very different, right? बहुत अलग है.
इस वजह से क्या हुआ, because of all these issues, what happened? The shipment, the final shipment of the product delayed and missed several deadlines. And the company also realized कि ठीक है हमने आउटसोर्स किया बट 65% ज्यादा कर दिया, और उस वजह से डिले हो गया, उस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए फॉर नेक्स्ट commercial jetliner, for their next generation commercial jetliner. What they did, they brought down this outsourcing from 65% to 40%, कि अब हम 40% ही बाहर से procure करेंगे, बाकी 60% will be in house. This entire case study what it explain, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मेंशन नहीं है, but I'm just telling you the fact कि outsourcing क्यों किया जा रहा है. If you look at the benefits of this the type of outsourcing, that clearly demonstrates कि आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को अच्छी अच्छी कंट्रीज से, अच्छी अच्छी कंट्रीज मीन अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर से यू वांट टू बाय, यू वांट टू प्रोक्योर. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, what is the reason behind such extensive level of outsourcing by Boeing? ऐसा क्यों हुआ कि बोइंग ने इतने एक्सट्रीम लेवल का, हाइपर लेवल का आउटसोर्सिंग किया? दो आंसर्स हैं इसके. द वेरी फर्स्ट आंसर, a global web of supplier yield a better final product. That is obviously one of the major outcome or the major reason that you are procuring different raw materials from different countries. The another answer which we call cross agreements. Cross agreements. Cross agreements क्या है? For example, Boeing bought different components from Japan-based firms such as Mitsubishi, Mitusha, right? These are Japanese-based companies. You went to Boeing, you went to Japan, and you asked Mitsubishi and Mitsusha. We call it Panasonic. अब इसको Panasonic बोलते हैं, Panasonic, right? Mitsusha. So आपने कहा कि हमें कंपोनेंट चाहिए, आप हमें कंपोनेंट प्रोवाइड कराएंगे, बट वी हैव वन कंडीशन कि raw material we are buying from you, and the final product your government or your aviation countries will buy from us. So what is it? It's a cross agreement. In order to secure your overseas contract, you'll have to enter cross agreements. आप उन सब कंट्रीज की कंपनी से प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं, बिकॉज यू वांट देयर कंट्रीज, दोज कंट्रीज टू बाय फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम योर कंपनी. ठीक है. तो दिस इज समथिंग कॉल्ड क्रॉस एग्रीमेंट्स. ठीक है. सो आई होप आपको केस क्लियर हुआ होगा, बोइंग केस क्लियर हुआ होगा. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, shall we take 5 minute break? I need to have water in the water washroom. No, sir. है ना? No, sir. Sir. Sure. हाँ, sure. Okay. Okay. Thank you. क्लास खत्म हो गई क्या? नहीं, ब्रेक है 5 मिनट. अच्छा, 5 मिनट्स का ब्रेक है. क्लास 9 बजे तक चलेगा ना? यस. थैंक यू. हाँ. थैंक यू.
Okay, I'm back. Shall we continue now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so we talked about globalization of production, right? We took one of the example, one of the case of Boeing and how they went to a very extreme level of outsourcing. They outsource 65% of the value of the product, but that kind of that high, very high level of outsourcing obviously went a big fire company, and that is the reason for their next jetliner company limit that outsourcing from 65% to only 45%. That we discuss. But the idea remains same. Why company is doing outsourcing in order to make the best product. वो आउटसोर्सिंग कब पॉसिबल होगा? ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल होगा. अब इमेजिन करो ना, इफ यू इमेजिन कि जापानीज कंपनीज मना कर दें, जापानीज गवर्नमेंट मना कर दें, यू कैन नॉट बाय एनी प्रोडक्ट फ्रॉम माय कंट्री. If Italian manufacturer, if they say okay, you are not allowed to buy any product from my country, obviously क्या आप बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाओगे? ग्लोबलाइजेशन नहीं है, फ्री ट्रेड नहीं है, तो यू कैन नॉट डू इट. ठीक है. Now, come to the second types of globalization. As I already told you, there are two types of globalization. First was globalization of production, and the second one is a globalization of markets. Globalization of markets क्या है? देखो, globalization of production हमने समझ लिया. अब आपको क्या करना है? आपने प्रोडक्ट बना लिया. Same duster example. You made that duster with the help of globalization of production through procuring different materials from different countries, right? Now your problem is, now your concern is, who will buy this duster? कौन ये डस्टर बाय करेगा? आपने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी भेज देंगे, रशिया में भेज देंगे, राइट, अमेरिका में भेज देंगे, इंडिया में तो बेच ही रहे हैं, ये तो हमारा होम कंट्री है. ठीक है, हम भेज देंगे, इजराइल में भेज देंगे, फॉर इंस्टेंस ईरान में भी भेज देंगे, सबको प्रोडक्ट भेज देंगे. क्यों बेच पा रहे हो? Why you are able to sell your product different countries? The only reason, because the world market is opening their doors. If they close their doors, if they don't allow Indian product to enter their countries, you cannot sell the product. So this is the outcome of the globalization of production. Because once you make the product, now you'll have to sell that product in different countries. This exactly we call the globalization of markets. Okay? So it refers to the merging of historically distinct and separate nations market into huge global marketplace. For instance, Microsoft का example लेते हैं. Microsoft boasts to sell its operating system in more than 160 countries. Imagine करो, Microsoft अपने प्रोडक्ट को 160 से ज्यादा कंट्रीज में सेल करता है. और अगर इफ वी इंक्लूड देयर काउंटरफीट प्रोडक्ट होते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट का एक जो पायरेटेड वर्जन है, पूरे वर्ल्ड में 190 प्लस कंट्रीज में पायरेटेड वर्जन्स यूज होते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में यूज होते हैं. सेल होता है 160 प्लस में, बट यूज ऑलमोस्ट हर कंट्री में हो रहा है. हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स. ठीक है. In last 2 decades, the tastes and preferences of consumers in different nations are beginning to converge on some global norms. इसका देखो एक सीधा सा मतलब है, जब आप बात करते हैं वेस्टर्न इकोनॉमीज की, वेस्टर्न इकोनॉमीज, मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं जो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. वेस्टर्न कंट्रीज में मैं ऐड कर रहा हूं यूएस को अभी के लिए, और सिर्फ यूके को. ठीक है. अब मैं ईस्टर्न इकोनॉमीज की बात कर रहा हूं, ईस्टर्न इकोनॉमी सच एज इंडिया. ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट यूएस एंड यूके एंड इंडिया, वेस्टर्न बोलते हैं ना, पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर है. अब आप इमेजिन करो आज से 50 साल पहले, 50 years, if you go back 50 years. So if you look at their culture, Western culture, India was impacted. Obviously, India was impacted by Western culture because they were the one, especially the British
They were those who ruled India for more than 175 years. है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्टली ब्रिटिश इंडिया कंपनी और क्वीन के थ्रू रूल हुआ तो ऑब्वियसली देयर वाज एन इम्पैक्ट, ठीक है। बट एट द टाइम 50 इयर्स, इमेजिन 50 इयर्स पहले, how many of people they were using short pants, they were using like different female related clothings, right, female clothings. So obviously इंडिया के जो फीमेल क्लोथिंग्स हुआ करते थे, होते होंगे 50 इयर्स पहले, सूट could be, right, could be sari, right. The reason, because of there was very less information communications, less media availability, less exposure to the content from Western countries, like movies, films, communications, right? Imagine karo 50 saal. I'm specifically talking about 1970s, 1960 time period. Okay, if you ask your parents, if we ask our parents, we'll get to know. But imagine the current scenario. Present scenario we'll see because of the heavy or very heavy exposure through internet, through different modes of communications, through different entertainments, through globalization, right? Things are easily available, things are made easily available from Western countries to India or the country like India. And therefore, if you look at the clothing patterns, taste and preferences pattern, they are more or less in line with US and UK. So what does it mean? It simply means because of the globalization, free trade, free access to one country from one country to another country, इससे क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम होते हैं। मैं कल्चरल चीजों में नहीं जा रहा हूँ, वो होना ठीक है या नहीं है, दैट इज not something I am not something of an expert on this subject, so I won't comment. I'm just giving this example to get better idea कि why some product becomes global product. So over the time, what happened in countries, taste and preferences consumers के क्या हुआ है, एक जैसे होने लगे हैं due to number of different reasons, जिस वजह से कुछ प्रोडक्ट ग्लोबल प्रोडक्ट बन गए हैं। There can be some product, for example, social media. Let's say social media is a very simple example to understand. Social media is a global product. Social media जिस तरह से हमारे कंट्री में यूज होता है, उस तरह से बाकी कंट्रीज में यूज होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल चाइना हैज इम्पोज नंबर ऑफ restrictions on social media. Australia has recently imposed some restriction on social media. Russia has also imposed, Cuba has imposed, Iran has imposed, many Middle East countries have imposed. But by and large, social media product or uses is more or less same. What about technological products? Operating system, for examples. So they are also global product. हम ग्लोबल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? हम ग्लोबल प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को बोलते हैं जो वर्ल्ड वाइड बिना किसी चेंजेस के, मॉडिफिकेशन के हर जगह सेल हो सकता है। मान लेते हैं फेसबुक has all those features, same features. Instagram, they have same features in every country. Let's say फेसबुक का भी सेम फीचर्स है हर कंट्री में, व्हाट्सएप का भी सेम फीचर है, इंस्टाग्राम का भी सेम फीचर है। इसका मतलब है सब कंट्रीज इसको यूज कर रही हैं विदाउट एनी मेजर डिफरेंसेस in these applications or these uses. तो we'll say global, it's a global product, right? तो कोई प्रोडक्ट अगर ग्लोबल प्रोडक्ट बनता है ना, कंपनीज के लिए आसान हो जाता है उस प्रोडक्ट को बिना किसी मॉडिफिकेशन के सेल करना। बट ये कहना भी गलत है कि हर प्रोडक्ट ग्लोबल प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। There are significant differences among national markets along many relevant dimensions, including customer taste, preferences, distribution channels, culturally embedded value system, business system, legal regulations। और ये भी तो बहुत इम्पैक्ट डालेंगे ना। जैसे देयर इज अ केस स्टडी, वी स्टडी मैकडोनल्ड्स का केस स्टडी, हम पढ़ते हैं, हर बार पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं मैकडोनल्ड्स का केस स्टडी। सो व्हेन मैकडोनल्ड्स दे एंटर्ड इंडिया, दैट वाज अ टाइम व्हेन दे एंटर्ड, they faced a very heavy backlash.
So when they entered India back in late 1990s, so that time there was number of protests against McDonald's and their store by different right-wing outfits, right? The idea and the reason was क्योंकि मैकडोनल्ड फेमस था अपने बीफ बर्गर्स के लिए, हैमबर्गर्स के लिए, पोर्क बर्गर के लिए. आपको पता होगा बीफ कंजम्पशन, pork consumption in our country it is attached to different religions. They have some religious sentiments, right? Especially in northern India में अगर हम बात करें, खासकर northern India में बात करें, तो imagine करो when McDonald came, was McDonald able to sell same hamburgers, same beef and pork ingredient burgers to Indian market? Never. थाने की उनके स्टोर में तो आग लगा दी थी. 1997 की बात है. आई थिंक वन ऑफ द, मुझे याद नहीं आ रहा, बजरंग दल, व्हाट दे डिड, दे अब्लेज देयर वन ऑफ द स्टोर कि भाई ये इंडिया में आकर भी अब ये सेल करेंगे. तो मैकडोनल्ड ने क्या किया, क्योंकि उनको समझ आया कि भाई मार्केट्स आर वेरी डिफरेंट. आई कैन सेल एवरीवेयर, आई कैन सेल hamburgers everywhere, but I cannot sell hamburger in India. The reason is obvious, because of the differences in tastes and preferences, cultural values, religious values, perceptions. That is the reason McDonald had to come up, Maharaja Mac at that time. They said क्योंकि हम आलू टिक्की बर्गर ही सेल कर रहे हैं भैया, हमें इंडिया में बिजनेस करना है, वी विल सेल आलू टिक्की बर्गर. ऑब्वियसली आलू टिक्की बर्गर आज भी कितना फेमस है, किफायती भी आता है, मतलब इकोनॉमिकल भी है, साथ में बहुत पसंद किया जाता है इंडिया में. Many companies, their flagship product is only आलू टिक्की बर्गर. Go to Burger King, you will see it. सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ आपको आलू टिक्की बर्गर मिलेगा. Whenever I normally don't visit, but whenever I have to have something, whenever I'm going out, I always buy आलू टिक्की बर्गर. ठीक है, सस्ते में अच्छा मिल जाता है. So this is something very famous product, right? So the idea of the globalization, you have to respect cultural differences, you have to respect national differences, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोडक्ट बनाना भी होगा. अब डस्टर के केस में तो आप देखो, इमेजिन करो आपको डस्टर सेल करना है, तो डस्टर अगर सब कंट्रीज व्हाइट बोर्ड्स, सॉरी ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड यूज कर रही हैं, तो ऑब्वियसली दे कैन इजीली बाय डस्टर्स. बट फॉर एग्जांपल ईरान, इजराइल फॉर इंस्टेंस, it don't use chalk duster things, right? It only use white whiteboards only, which requires markers. No duster. कोई क्लासरूम में नहीं है. फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, बट आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल. तो ऑब्वियसली इजराइल के मार्केट तो आपके लिए फिर है ही नहीं ना. इजराइल में कौन बाय करेगा? हम हो सकता है चॉक्स लोगों को पता भी ना हो कि चॉक्स क्या होते हैं. तो दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी जनरल आइडियाज, ठीक है, अबाउट द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स. ओके, this is about the drivers of globalizations. Now, important is what? अगर आप बात करें, हमने अच्छे से समझ लिया, सारी चीजें जान ली कि भाई ग्लोबलाइजेशन अच्छा है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन में कुछ कमी भी आई है. बट आई वुड आस्क यू कि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने की क्या कोई फोर्सेस रही हैं, क्या कुछ इवेंट्स रहे हैं? बिल्कुल रहे हैं. जो आज हम ग्लोबलाइजेशन देख पाते हैं, देयर आर many components of globalization that forces that promote globalization and make globalization what is it is today. So we are going to now look into the different components or reasons जिनसे ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हुआ है, स्पेशली लास्ट 30-35 years. एक एक करके बात करेंगे. The very first argument, the very first reason, over the time ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स कम हुए हैं. बैरियर्स क्या होते हैं? ऑब्स्टेकल्स होते हैं. आई वांट टू इन्वेस्ट इन यूएस, बट यूएस गवर्नमेंट बोलती है नहीं, हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते. इट मींस दे हैव इन्वेस्टमेंट बैरियर्स. आई वांट टू सेल माय प्रोडक्ट टू यूएस, यूएस कहता है नहीं,
100% फाइन लगाएंगे, सॉरी 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, तो व्हाट इज इट? दिस इज अ ट्रेड बैरियर। ऑब्वियसली ट्रेड बैरियर्स होंगे, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स होंगे, तो अगर वो हटते हैं, उनको डिक्लाइन किया जाता है, उनको रिड्यूस किया जाता है, that will definitely helps to grow globalization, right? So the data between 1920s and 1930s, many of the world nation state erected formidable barriers to international trade and foreign direct investment. आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट या सेकंड स्लाइड डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था, वी कॉल इट इंटर वॉर पीरियड। इंटर वॉर पीरियड ऐसा था कि हर कंट्री ने सोचा कि यार मुझे अपना बाहर करना है, आई डोंट केयर अबाउट फ्री ट्रेड एंड एवरीथिंग, आई विल बी आत्मनिर्भर। जैसे हमारे यहाँ भी कहते हैं ना, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर बनना गलत नहीं, बट आत्मनिर्भर आप किस कोस पे बन रहे हैं, वो गलत है। तो that what happened at the time, many countries they started increasing barriers कि हमें मतलब नहीं है, हमें अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है। Sir, you are not audible. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस ब्रेक You हो are रही not audible. आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। रोलेक्स भैया फोन कर लो एक बार सर को। हाँ कर रहा हूँ यार। सर का नेट चला गया। शायद ऐसा ही हुआ है, इसीलिए आवाज नहीं आ रही है। ठीक है भाई, ओके भाई। दीपक भाई अपनी माइक बंद कर लो, जिम की आवाज आ रही है। भैया मैं तो घर पर हूँ। दीपक आवाज बंद कर दो। सर जी बस 5 मिनट बता रहा हूँ, 1 मिनट। थैंक यू।
हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, I left class in between. Someone texted me and told me about this. I don't know आपकी आज आवाज क्या हो बिल्कुल रहा नहीं है। आ रही थी सर। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी, मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, अब मुझे ये भी नहीं पता, मुझे लगा नहीं, आप लोग लास्ट सब 10 सुन मिनट रहे तक हैं। आपकी एक आवाज नहीं सुनाई दी। लास्ट 5-10 मिनट मुझे आपकी एक आवाज नहीं आई सर आपकी। अच्छा, तो 5 स्लाइड भी 10 चली मिनट गई नहीं आपकी। आई। यस सर। ओह, अरे Yes, sir. see, this is so embarrassing. I सर was स्क्रीन भी just नहीं आ रहा है। speaking non-stop. I had no idea. Someone called me only then I got to know because I wasn't using WhatsApp. तो मुझे कॉल से ही पता लगा, फिर मैंने चेक किया. As I already told you, these are the things which we always face during class time. मतलब ऑनलाइन क्लास के कुछ नुकसान तो हैं ही. Uh, अच्छा, लास्ट चीज मैंने क्या पढ़ाई थी आपको? लास्ट चीज क्या था? व्हाट इज द लास्ट पॉइंट वी आत्मनिर्भर के बारे डिस्कस? में बता रहे हैं। अच्छा, इंटरवार पीरियड फर्स्ट एंड अच्छा, बिटवीन द फर्स्ट वार एंड सेकेंड वार एंड अच्छा. आत्मनिर्भर के बारे में। हाँ, तो हुआ क्या ना, कंट्रीज ने दे बिकम मोर आत्मनिर्भर. सर देखो लास्ट स्लाइड भी आत्मनिर्भर. देखना होगा, लास्ट स्लाइड ही मिस हुआ हम लोगों का। अच्छा, लास्ट क्लास में नहीं डिस्कस किया हमने? इससे पहले वाला स्लाइड। नहीं, ये तो हम डिस्कस कर चुके थे. इवन आई आस्क यू क्वेश्चन एट द टाइम. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, Yes, sir. राइट? यस सर, दिस इज हाँ, तो वी वर यस सर। हाँ, वी स्टार्टेड द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. हमें पता लगा 1920s एंड 1930s का जो टाइम पीरियड था, तो आई स्पेसिफिकली राइट इट डाउन हियर. allow me a minute. Yes, from 1919 to 1939, ये 20 years का जो टाइम पीरियड था ना, ये बहुत ही क्रूशियल रहा अपने आप में. वी कॉल इट इंटर वॉर पीरियड. इंटर वॉर पीरियड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है. So earlier they used not to say First World War क्योंकि सेकेंड का तो पता नहीं था ना, so they used to say Great War only. Great War. First World War को they used to say Great War. ठीक है. Now that was a time period every economy had become very sensitive of their own benefits, of their own welfare, and they started closing their economies. कि भाई हम अपनी इकोनॉमीज को बंद करते हैं, टैरिफ हाई कर देंगे, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स हाई कर देंगे, हमें आत्मनिर्भर बनना है, हम अपना प्रोडक्ट खुद बनाएंगे, चाहे वो कितने भी कोस्ट पे बने, कितना भी बेकार से बेकार प्रोडक्ट बने. आप इमेजिन करो, जब कोई पॉलिटिकल लीडर ये कहता है किसी भी कंट्री में, आई एम नॉट स्पेसिफिंग डायरेक्टिंग टू एनी कंट्री और आई एम नॉट गिविंग यू एनी आइडिया ऑफ एनी कंट्री लीडर, बट आई एम जस्ट सेइंग पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि कोई कंट्री जब कहती है कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि यार वी विल बी एबल टू मेक एवरी प्रोडक्ट, हम सब कुछ बना सकते हैं. अब जैसे आपको आई जस्ट टेल यू वन केस जो आपको समझ आएगा. पाम ऑयल. पाम ऑयल आपने सुना होगा, बहुत अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, बट वी यूज इट. पाम ऑयल हम यूज Yes, करते हैं, sir. है ना. पाम ऑयल का प्रोडक्शन कहाँ, इंडिया में होता है? नहीं, वी डोंट प्रोड्यूस इट, क्योंकि इंडिया का जो टोपोलॉजी है वो अलाउ नहीं करता. हमारे जो वातावरण है, हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, दैट डजंट अलाउ. देयर इज ओनली वन प्लेस इन इंडिया दैट पाम ऑयल कैन बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज अंडमान एंड निकोबार. अंडमान एंड निकोबार में पाम ऑयल को प्रोड्यूस किया जा सकता है. ठीक है. तो आप बोलेंगे सर फिर क्या हम कहाँ से बाय करते हैं? वी डोंट बाय, we don't produce it. We used to buy from Malaysia. We used to buy it from Indonesia. Right. यहाँ से हम बाय करते थे. एक कंट्री का नाम मुझे याद नहीं आ रहा. ये दो कंट्रीज मेजर हम यहाँ से बाय करते थे, क्योंकि इन कंट्रीज का आप लोकेशन देखोगे ना, दे आर द आइलैंड कंट्रीज, है ना. मलेशिया, इंडोनेशिया आइलैंड कंट्रीज हैं. यहाँ पे पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है, तो वी इंपोर्ट, वी बाय फ्रॉम दीज कंट्रीज. तो एक टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट को लगाया हम बाय करते हैं. हमारे साथ मलेशिया के कई बार अच्छे रिलेशंस नहीं रहते, इंडोनेशिया से कई समटाइम वी डोंट शेयर गुड रिलेशंस. तो हम क्या करते हैं, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, पाम ऑयल्स को प्रोड्यूस करेंगे. हम क्या करेंगे, हमने एक स्टडी किया, वी गॉट टू नो कि निर्भर बनने के लिए इन पाम ऑयल प्रोडक्शन वी विल गो टू अंडमान एंड निकोबार, वी विल प्रोड्यूस इट. तो गवर्नमेंट सेड कि ओके वी विल डू इट, हम बनाएंगे, हम पाम ऑयल खुद बनाएंगे. बट एक स्टडी ने पाया कि पाम ऑयल अगर प्रोड्यूस किया जाता है अंडमान एंड निकोबार में,
तो अंडमान एंड निकोबार का जो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा कुछ ही सालों में, right? वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो जब हम पाम ऑयल बनाएंगे ना, वो भी लो क्वालिटी पाम ऑयल बनेगा। अब आप देखो कितने रिस्क हैं, आपका इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है और लो क्वालिटी का आपको पाम ऑयल बन रहा है। तो जब हम बात करते हैं ना कि इस प्रोडक्ट में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट व्हेन इट कम्स टू अ फ्री ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन इट कम्स फ्रॉम द आइडिया ऑफ द फ्री ट्रेड, इन मेनी केसेस फ्री ट्रेड कहता है देखो बहुत सिंपल है फ्री ट्रेड, जिसको जो आता है वो बनाए। मुझे पाम ऑयल आता है तो मैं पाम ऑयल ही प्रोड्यूस करूं। आपको अगर क्लोथ्स बनाने है ना, कपड़े बनाने, आप कपड़े सबसे अच्छा बना सकते हैं, आप कपड़े बनाओ, आपस में ट्रेड कर लेंगे, मैं आपसे पाम ऑयल ले लूंगा, आप मुझसे कपड़े ले लेना। दिस इज द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंटरडिपेंडेंस। अगर मैं कहने लगूं मैं पाम ऑयल भी बनाऊंगा, मैं क्लोथ्स भी बनाऊंगा, मेरे यहाँ पे पानी बहुत महंगा है, राइट, वेज रेट्स बहुत हाई है, तो क्या मैं क्लोथ्स बना पाऊंगा? बिल्कुल नहीं बना पाऊंगा। इन सेम भी दूसरी कंट्री में कोई टोपोलॉजी नहीं है, पाम ऑयल का इन्वायरमेंट ही नहीं बन सकता आपके यहाँ पर, तो कैसे करोगे? ठीक है, तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत होती है। सो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कंट्रीज दे डिसाइड कि बहुत हो गया वॉर 30 सालों में 2 वर्ल्ड वॉर कर लिए, अगर अब वर्ल्ड वॉर करेंगे, कंट्रीज नाउ दे पोजेस न्यूक्लियर बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, तो वर्ल्ड वॉर तो छोड़ो, आप रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो कंट्रीज दे डिसाइडेड कि हम आपस में ट्रेड करेंगे। आपस में ट्रेड करने के लिए द कंट्रीज दे केम टुगेदर एंड दे क्रिएटेड गैट इन 1947, और ये ट्रेड करने के लिए बनाया गया था कि ट्रेड के जो बैरियर्स हैं उनको कम किया जाए, टैरिफ रेट्स को कम किया जाए और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को कम किया जाए। ठीक है, जब आपस में ट्रेड करेंगे कंट्रीज ना, तो एक दूसरे के स्टेक एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? Yes, sir. Yes. हाँ, Yes, sir. I thought I lost you again. No, sir. Anyways, हाँ, तो ट्रेड क्या करता है ना, आपके इंटरेस्ट को अलाइन कर देता है। अब जैसे I don't know whether I'm authorized to say this since I'm saying this online, but I just want to give you one crucial uh, thing, or the very recent, you'll be able to relate with it. What happened in Iran? Their supreme leader was died. I would say in that one of the strike by US and Israel, we, India, did not condemned it for 6-7 days. हमने कुछ कंडेम नहीं किया। We had number of statement from Ministry of External Affairs, from our Prime Minister, and those speeches or those different briefing, they were appearing in favor of Israel and US. ठीक है, जब हमें समझ आया एक टाइम के बाद कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया जा रहा है, एलपीजी की किल्लत हो जाएगी, ऑयल की किल्लत हो जाएगी, एलपीजी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे हमारी कंट्री में, वी हैव बफर स्टॉक ऑफ ओनली विच विल लास्ट ओनली 2 days. At that time, India changed its strategy, and one of the Indian diplomat met one of the foreign Iran minister, and they signed the condolence book कि हाँ, हम 6 या 7 दिन के बाद हम आपके पास आए और आप उसको द सुप्रीम लीडर ही डाइड, तो हम उस पर अपना अफसोस जताते हैं। So what happened here? Because of the trade relationship, because of the trade situation, they closed down Hormuz Strait, and we want our ships to go through to pass Hormuz Strait, and in order to do so, we were not able to afford to upset Iran. We exactly did that, but we managed it somehow. We are calling Iran again and again every day for every single ship passing. आपको पता होगा इंडियन शिप्स को नॉट ओनली इन इंडियन शिप, मीडिया में तो अलग तरह से दिखाया जाता है, बट इफ यू लुक एट थिंग वेरी क्लोजली, इफ यू रीड गुड आर्टिकल्स, यू विल गेट टू नो ईरान हैज कैटेगोरिकली स्टेटेड कि जो यूएस एंड इजराइल के अलाइज नहीं है, मित्र नहीं है, फ्रेंडली नेशंस नहीं है, हम उनको अलाउ करेंगे, बट द कंडीशन विल बी
यू विल हैव टू गेट परमिशन फॉर ईच शिप। यानी अगर इंडिया के अभी सर आवाज चली गई फिर से। आवाज सो कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर। रोलेक्स भैया लास्ट फोन कर दो। एक मिनट। आई डोंट थिंक सो। सर लास्ट के 3-4 लाइन आप रिपीट कर दो जो आप बोले होंगे। अच्छा छूट गया, ओके ठीक है। जी लास्ट 2-3 मिनट। There are still 22 Indian bound ships get stuck in Hormuz Strait. उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ इंडिया की शिप्स हम पास करेंगे, नो दे नेवर सेड दिस। दे जस्ट सेड कि किसी भी कंट्री का शिप हम अलाउ करेंगे, बट आपको हर शिप के लिए एक तो पेमेंट युआन में करनी पड़ेगी। नाउ दे हैव चेंज द रूल, नाउ देयर विल बी नो पेट्रो डॉलर रिक्वायर। पेमेंट आपको युआन में करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम आपको हर शिप के लिए, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, हमको भी हर शिप के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी पास होगा एक एक शिप। So what is it? These are the because of this is only because of the trade conditions. Many countries, they are so defensive, they are not speaking against of Iran, right? तो ये सबको समझ आया कि ट्रेड से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, आई विल शो यू। लास्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट आई विल शो यू this data. Now look at this data. These are what? These are the tariff rates. These are the average tariff rates on manufactured product as percentage of value. Over the years, look at the comparative rates from France. 21% in 1913 ये चार्ज करते थे एवरेज, जो इनकी कंट्री में जो गुड्स आते थे उस पर। From 21 to 18% to 5.9% to 3.9%, and by 2017 they were charging 1.6%. Look at Germany, from 20% to 1.6%, from 18% to 1.6%, Japan 30% to 1.6%, US 44% to just 1.6%. Look at the average tariff rates. या आपको जो एवरेज टैरिफ रेट्स है 2017 के मैंने बताए हैं तक बताए हैं। देयर इज अ पर्पस, देयर इज एन ऑब्जेक्टिव कि 2017, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 2017 के बाद से ओवरऑल टैरिफ रेट्स इंक्रीज हुए हैं। तो डेटा मैंने इसलिए 2017 तक लिमिट किया। उसके बाद का डेटा भी आई विल शो यू इन द नेक्स्ट क्लास, बट फॉर द टाइम बीइंग वी जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टैरिफ रेट्स हैव डिक्रीज्ड more than 95-97% in last 100-year time period. तो टैरिफ रेट कम हुए, इट्स अ बिग अचीवमेंट। टैरिफ रेट्स कम होने की वजह से कंट्रीज आपस में ट्रेड कर पा रही हैं, गुड्स अवेलेबल हो पा रही हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, राइट? तो दिस इज वन ऑफ द डेटा विच आई वांटेड टू शो यू since it's about time, not only about time but we have crossed time right now, but no issue. ये हम डेटा बाद में शेयर करेंगे, देखेंगे, बट आई वांट टू शो यू समथिंग एल्स। आई वांट टू शो यू वन मैप हियर, ओके, दिस मैप, ओके, सो ओके, सो व्हाट इज इट? हॉर्मुज स्ट्रेट। ये ईरान है, दिस इज ईरान, ये ईरान है, यहाँ तक ईरान है, राइट? आप देख सकते हैं दिस इज पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ। दिस इज अ नैरो पैसेज, दिस इज अ वेरी नैरो पैसेज, आप देख सकते हैं, है ना? Yes, sir. यहाँ पे किसी Strait शिप of को Hormuz. यस वी कॉल इट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा देयर इज वन स्ट्रेट, वी कॉल इट बब अल मंदेब स्ट्रेट। तो इस तरह से वर्ल्ड में देयर आर स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट्स, वी कॉल देम चौक पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पर किसी को अगर क्लोज करना है, ईरान वांटेड टू क्लोज दिस, ईरान कुड इजीली डू इट। द रीजन इज यहाँ पर बिल्कुल नैरो पैसेज है ना, तो नैरो पैसेज में आप कम एरिया में शिप्स को निकलने के लिए कम जगह है, तो ऑब्वियसली आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द evidence this is one of the evidence how you can shift things in your favor
by making things more strategically rather more warfare. तो आपने क्या किया, आपने यहाँ से चॉप कर दिया कि जितने भी शिप्स होंगे अगर आप बिना परमिशन के जाएंगे तो हम उस पर बॉम्बिंग कर देंगे, परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, आपको हर शिप के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तब हमें जाके याद आया 7 दिनों के बाद 6 दिनों के बाद कि नहीं, ईरान के फेवर में भी कुछ बोलना पड़ेगा। वी कैन नॉट बी वेरी प्रो इजरायली और प्रो यूएस, राइट। तो इसलिए हमने अपना थोड़ा फॉरेन पॉलिसीज, थोड़ा डिप्लोमेसी को थोड़ा सा चेंज किया, राइट। तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, वील सी ऑल दीज थिंग्स इन द अपकमिंग क्लासेस, राइट। आज के लिए इतना डिस्कशन आई फील इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, and in the next class we will see the next part of it, right? I hope आप Okay, सबको sir. समझ आया होगा। Yes, sir. Yes. All Yes, sir. Okay. ठीक Yes, है। sir. So Yes, I sir. believe most of you are present. Most of you are there in the WhatsApp group. I think students, they are in the different WhatsApp groups. So I would request you, मैंने PPT ये share already कर दी है। If you want, I will share it again. हाँ sir Yes, कर दी sir, मैंने मुझे share. कुछ बुक्स में नहीं मिल पाता हाँ है। जी। मैं सर मैं सर थर्ड मिल जाएगी सेमेस्टर मैंने एग्जाम नहीं दिया था। हेलो सर, मैंने Yes. थर्ड सेमेस्टर नहीं दिया था। थर्ड सेमेस्टर में मैंने इंटरनल एग्जाम नहीं दे पाया मैं किसी कारण से। हेलो Okay. And सर, मैं थर्ड सेमेस्टर का इंटरनल एग्जाम नहीं दे पाया था, तो क्या मैं फोर्थ सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर का इंटरनल एग्जाम दे सकता हूँ? पेट्रोल पंप से होके आना uh, पड़ेगा क्या? सर कौन I would पेट्रोल पंप से? apologize because ठीक है I am not the right person to answer this question. ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन वाले आपको चलिए ज्यादा भाई, अच्छे से बहुत बता यहाँ से पाएंगे। वहाँ चक्कर लगे मम्मी के साथ में। सर नहीं दे सकते, एक ठीक ही है बार सर। दे सकते हैं बस इंटरनल, उसके तो बाद मैं नहीं दे ऑफिस में सकते जाके पूछ लूंगा। अगर अच्छा, रह गया तो। so you all people can discuss this because I am a permanent faculty in my college, in ARSC college. I just take my classes here like Sunday to Sunday only or on different days in evening. तो मुझे क्लासेस के बारे में तो पता है कि क्लासेस जब होंगी मुझे क्लासेस लेनी है, बट आई डोंट नो मेनी मोर थिंग्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स, सो आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू इन दैट वे। ठीक है, आप लोग बात कर सकते हैं। जैसे तनुषा मैम है, शी इज अ करंट कोऑर्डिनेटर, MBA कोऑर्डिनेटर। यू कैन टॉक टू अभिलाषा मैम एज वेल, राइट। सर नहीं दे आप सकते, मतलब इंटरनल अच्छा एक ही नहीं बार दे दे सकते सकते हैं। हैं। ठीक नहीं है सर, सर, मैं उसको एक फॉलो बार कर लूंगा। मिस हो गया ना तो नहीं दे सकते आप उसे। You may talk to अच्छा। Harinder Rolex भैया। मतलब He थर्ड can सेमेस्टर answer all का your- इंटरनल मिस हो गया तो फोर्थ में नहीं दे सकते हम लोग? नहीं दे सकते। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, फिर तो उसको खत्म करना होगा तो बहुत दिक्कत हो भाई जाएगी ऑफिस में। भाई हरिंदर सर का नंबर आप ले लो और इनसे बात कर लेना, बता देंगे आपको। Shall we end this class now? Yes, या sir. श्योर, थैंक यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Thank Thank you, you. sir. Good Thank night, you, sir. sir. Thank you, sir. Thank I'll you, sir. share the Thank you, PPT sir. and the relevant articles again. And I would request you one thing, please, you people go through. अगर मैं आपको कुछ शेयर करता हूँ तो these things are meant for obviously to study and to get the idea in depth, right? ऐसा नहीं है कि हम MBA में आ गए हैं। देखो मेरा मानना है, सिर्फ मेरा काम ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको पढ़ा दूं, मेरा काम खत्म है। बट मैं आप लोगों से इतना कमिटमेंट चाहता हूँ कि इफ यू आर टेकिंग दीज क्लासेस, आई फाउंड यू पीपल लिटिल सीरियस फॉर द क्लासेस, सो प्लीज टेक दीज क्लासेस। एंड जो भी आपको आर्टिकल्स आते हैं, जो भी आपको केसेस आते हैं, प्लीज गो थ्रू दोज केसेस इन डिटेल। ठीक है, थैंक यू। Okay, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Good night, sir. ओके, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir. गुड नाइट सर।